Vigilance Week 2025. It is being observed from 27th today till 2nd of November. The theme is Vigilance, the Shared Responsibility. When we look into the theme, Vigilance, the Shared Responsibility, it means that each and every person has a responsibility in fighting corruption. Because when we talk about vigilance, it means the first thing which comes in our mind is corruption. There are four aspects to it, four participating people. One is citizens, other is employees, third is department, and fourth is government. When we talk about citizens, they have an active role to play. They have to report corruption. Wherever they find there is corruption, they have to report it to the organization. When we talk about employees, there are certain rules and regulations for employees. They have to follow it. They have to ensure that they do not indulge in corruption. And if they find that there is any kind of corruption prevailing at any point, they have to report it to the higher authorities. Then there comes the government. The role of the government is to make different organizations which fight corruption. Like we have CBC, we have CBI, we have ACB, we have ED, and last is the departments. When we talk about departments, they have to do the regular audits. They have to ensure that their down the line, whosoever employees are employed, and ensure that the participants, they do not indulge in corruption, and if they find any corruption, they have to take action against it. So it's not the sole responsibility of ACB or any other organization to fight corruption. It is the responsibility of the general public, employees, departments, to come forth and fight against corruption. It is being observed throughout India, and in if we talk about Kashmir, it is being organized in three zones. We have three different teams in three different zones: in North Zone, in Central Zone, and in South Zone. When we talk about the North Zone, then we have different teams there. When we talk about our Central Zone, we have teams in Badgam, in Srinagar, and in Gandarbal. मेरी मैसेज यही रहेगी जनरल पब्लिक को, that wherever you see कि करप्शन कहीं पे भी हो रही है, आपको अगर कोई आपसे पैसे मांगे आपका काम करने के लिए, तो आपके पास एक प्रोविजन है, आप ACB आ सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, हमारा ऑफिस है पीरबाग में, आप वहाँ आ सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी ऐप्स हैं, आप उस पर कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उस पर भी अपनी जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हैं। तो मेरी मैसेज ये रहेगी कि this fight is for everybody. We have to fight against corruption. Don't be afraid. इसमें विसल ब्लोवर्स है, इसमें आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर आपका काम किसी लेवल पे नहीं होता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो काम जो है वो आपका हो जाए once you report to ACB office. मैम that's what I was saying, that आपके पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, आप वहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, आपके पास टोल फ्री नंबर्स है, आप ऑफिस भी आ सकते हैं। ये सारी हमने सहूलियतें इसीलिए रखी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कंप्लेंट करने को। उनको ऐसा लगता है द मोमेंट हम कंप्लेंट करेंगे हमारा काम जो है वो फिर नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जो ही आप हमारे ऑफिस आते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि एक तो वो इंडिविजुअल जिसने आपसे पैसा मांगा है, ही इज ब्रॉट टू बुक, एंड एट द सेम टाइम कि आपका जो काम जिस भी जगह पे रुका हुआ है, हम इंश्योर करते हैं कि वो काम भी उसका हो जाए, अगर तो वो लीगल होगा। यूजुअली इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे विसल ब्लोवर्स एक्ट एक एक्ट होता है। अगर अगर कोई, अब जनरल पब्लिक को ये परसेप्शन है कि विसल ब्लोवर कोई भी बन सकता है, लेकिन विसल ब्लोवर कोई भी नहीं बन सकता है। विसल ब्लोवर होता है जो डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहा हो या जिसको डिपार्टमेंट के अंदर की नॉलेज हो। तो इनके लिए एक अलग एक्ट पास किया गया है, विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। तो जो जनरल पब्लिक है, यूजुअली जनरल पब्लिक का जो भी इंडिविजुअल होगा वो तभी आता है ऐसे ऑफिस में जब उसको बड़ा तंग किया जाता है। तो जब वो वहां आता है, हम इंश्योर करते हैं, पहले तो उसकी सेफ्टी ही हम इंश्योर करते हैं, हम सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ कोई ऐसी चीज है, कोई मतलब जो कंप्लेंट है वो सच में ऐसी है कि मतलब फैक्ट्स पे मबनी है, तो हम उसमें एक्शन लेते हैं। बट हम साथ साथ वो जो कंप्लेनेंट होता है उसके साथ हमेशा इन टच रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको हरास किया जा रहा होगा, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको हरास कर रहा होगा कोई, तो जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं ताकि हम इंश्योर कर सके कि उसकी भी सेफ्टी जो है उसका पूरा ख्याल रख सके। नहीं, ये विजिलेंस वीक है, स्टार्ट हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन रहेगा एंटी करप्शन ब्यूरो का। आज फर्स्ट डे था तो रेवेन्यू के साथ इंटरेक्शन था। रेवेन्यू का मोस्टली ज्यादा इसलिए है क्योंकि रेवेन्यू का जो इंटरफेस है लोगों के साथ वो बहुत बड़ा है। आप देखें कि जब से एक आदमी उसकी पैदाइश होती है वहां से लेकर डेथ बेड तक
कहीं न कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ वो हर समय मुंसलिक रहता है। जब भी इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे शायद करप्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देख पाएँगे कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो पूरा मॉडर्नाइज़ हो रहा है, डिजिटाइज़ हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी चाह के इंक्रीज़ हो जाए। आपके पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसकी मॉडर्नाइज़ेशन, उसकी डिजिटाइज़ेशन हो रही है। आपके पास जो रिकॉर्ड आएगा वो सारा ऑनलाइन आएगा। आप घर जाके देख सकते हैं। आपके जो मैप्स हैं वो डिजिटाइज़ है। उनका वो लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड एग्ज़ैक्टली आपको डिफाइन करेगा हर एक पॉइंट पे। अभी आपने देखा रिसेंटली शायद हमने स्वामित्व स्कीम में यहाँ पे कार्ड्स भी प्रॉपर्टी कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरह से आप देखें रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आप देख पाएँगे कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी कार्रवाई जो करता है वो ऑनलाइन है। वो किसी से छुप के नहीं है। रिकॉर्ड शायद पहले एक आइडेंटिफाइड पर्सन के पास हुआ करता था, ले अब वो बात नहीं है, अब ऑनलाइन रहेगा, जो पुराना लेगेसी डेटा है वो डिजिटाइज़ हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जो नया रिकॉर्ड बनने को है, वो नेक्स्ट मोड में सारा डिजिटल मोड में ही बनेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट यहाँ तक सोच रही है कि इन प्रोसेस है, जो आपके जो इंतकालात हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में ही हो जाएँ। आप देख पाते हैं कि जो रेवेन्यू सर्विसेज़ हैं बाकी, जो रेवेन्यू सर्विस देता है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, किसी भी किस्म की सर्टिफिकेट्स, चाहे वो रेवेन्यू सर्विस हो और कोई सर्विस हो, वो सारी ऑनलाइन है। आप जनसुगम पोर्टल पे या रेवेन्यू प्लस पोर्टल पे इजरा की जाती हैं। मकसद यही है कि लोगों का जो है इंटरफेस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या लोगों के साथ वो कम हो जाए और इसी से शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरी है भी कि हर सिस्टम में कंट्री तभी तरक्की कर पाएगी जब जहाँ करप्शन बहुत कम हो। करप्शन कम उसी जगह होता है जहाँ पे आप देख पाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, जहाँ लोगों के ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसी जो डायरेक्शन में है चल रहा है और एक वक़्त ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा कि सारा कुछ जो रेवेन्यू कर रहा है वो डिजिटल मोड या ऑनलाइन मोड पे ही हो जाए।